some of you have been facing a very difficult time, specifically financially, in the last 3 to 4 months. The good thing is that the problem is finally solving. They're going to find a solution of your problem, specifically if it's a financial problem, you're going to start something new. But there is a process of where you'll be unfocused and careless with your energies. So you'll be very mean. Your action will be very mean towards your loved one and everyone. Maybe these are the frustration that have accumulated in the last few months and few weeks of this disturbance. So your behavior is going to change, specifically around your family member. But yes, you are going to recover from this financial loss. आप बहुत जल्दी इस financial losses, financial problems से recover होने वाले हैं. There is this phase where so many obstacles and ignorance is happening in your life. It could be like present में आप ये सब फेस कर रहे हैं and you're like, am I going to get out of this problem? Because I do see a very positive card for you, because we got the lovers. So you're going to find a new inspiration, you're going to find a new motivation, where you're going to take an action. You'll feel अंदर से आपके अंदर काफ़ी इच्छा होगी to take an action towards your goals, and I think this is the perfect time to take that action and not rethink too much about, do I deserve it, will it going to happen or not, because this is such a beautiful time period to continue this. We also got the temperance card, and if you can look at the card, how beautiful this card is like someone is reaching out to help you. It could be a mentor, it could be a guide, it could be your spirit guide as well, but I do see someone trying to reach out to help you with the temperance card. I do see that you need to find a balance in your mind, in your soul. um yeah, we got Knight of Pentacles. Again, we got the King of Pentacles with the Knight of Pentacles. You have been working on this for a very long time, and किसी रीज़न की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था. दैट्स वाई यू वर लाइक इन दिस फेज ऑफ अनफोकस एंड केयरलेस एनर्जी, बिकॉज आपने स्टार्टिंग में काफ़ी एनर्जी अपनी पुट कर दी थी एंड ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चला था. उसकी वजह से और बार बार सक्सेस ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ी थी. एंड देयर इज़ लाइक यू लॉस्ट द जिस्ट इन योर लाइफ. लाइक आपका किसी चीज़ में मन नहीं कर रहा है, यू फीलिंग वेरी इमोशनलेस, यू नॉट फीलिंग अटैच्ड टू बेसिकली एनीथिंग इन योर लाइफ. And that's why we got Temperance card and we got Knight of Pentacle. If you see this card, like how beautiful this card is. Like इस लड़के के हाथ पे पेंटिकल्स हैं, which somehow looks like a sun. It's a very also आज का दिन काफ़ी अच्छा है. It's today solar solstice is gonna start from today onwards. Also a very good day to do a sun worshipping, and we got a very positive card. Somehow it's very respectful, it's very related with money, it's very related with fame, it's related with wealth as well. So you are going to get the wealth that you deserve. We also got the Emperor card. What I was saying, हम सन की बात कर रहे थे, and the Emperor card is like राजा. कहीं ना कहीं ये भी सन को डिनोट करता है. You look at the card, I see after a very heavy period of burden, a very heavy period of इनसिक्योरिटी, यू आर गोइंग टू फाइनली बी वेरी सिक्योर इन योर पावर. आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हैं अपने ऊपर, अपने स्किल्स को लेकर, अपनी विल पावर को लेकर. आपकी विल पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, एंड यू गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल इन whoever you are. If you are working towards a goal for a very long time and you don't know कि how it will happen and कब तक ये होगा, you are very very near to it, because we did got Knight of Pentacles and the Emperor card, and both of these cards are very pretty. So I would advise you to continue whatever you're doing. अभी हार नहीं मानना है, because remember we got the Temperance at the start and we also got the Lovers card. So आप काफ़ी नियर हैं. अभी आपको हताश नहीं होना है, आपको कंटिन्यू होना है, एंड आई एम सीइंग सक्सेस फॉर यू वेरी वेरी सून. ऑल्सो दिस was a very sudden reading. I was not meant to do it. Okay, wow, we got 10 of cups. Amazing card. We got 10 of cups. 10 of cups कहीं कहीं हैप्पीनेस को दिखाता है, इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाता है. कैन यू सी द कार्ड? हैप्पीनेस को दिखाता है, इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाता है. तो यू गोइंग टू अचीव इमोशनल फुलफिलमेंट एज वेल. And
आई लाइक काफ़ी लंबे टाइम बाद आपको इतनी खुशी मिल रही है, तो शायद अभी आपको बिलीव नहीं होगा कि इज़ इट गोइंग टू हैपन, लाइक डू आई डिजर्व एवरीथिंग? यू डू डिजर्व एवरीथिंग, लाइक यू हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, like so many, you face so many obstacles, you face so many threats, you dealt with so ignorant people in your life. You finally deserve this level of success. You finally, you, because you have been patient for a very long time, you're going to get money, you're going to get money, and money की वजह से सिक्योरिटी होगी. जो लोग कहते हैं कि you know money is not enough, or we don't get emotional security, then they are lying. They are lying. You're going to face I see 10 of cups for you, but सबसे frankly the card that came mostly were related with money and everything, और 10 ऑफ कप्स जो कहीं ना कहीं इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है वो सबसे लास्ट में आया है, विच इज़ लाइक कि आप कहीं ना कहीं अपने प्रोसेस में, अपने करियर में, अपने रैंक में स्टेबल होने वाले हैं, आप अपनी प्लेस में काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं, आप अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट होने वाले हैं. उसके बाद आपकी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट आएगा. तो अगर आप इमोशनल फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं और आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, तो द वे टू रीच द 10 ऑफ फ्रॉम नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर, तो आपको कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, बिकॉज फाइनेंशियली आपका आने वाला टाइम काफ़ी बेटर है. यू गोइंग टू अचीव सक्सेस, एंड यू गोइंग टू अचीव इट इन अ सच अ लेवल कि आपको शायद कभी रियलाइज़ ही नहीं होता, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आपको इस लेवल की सक्सेस मिल सकती है. या किंग ऑफ कप्स, एंड उस सक्सेस के बाद कहीं ना कहीं आप इमोशनली जो एम्प्टीनेस काफ़ी लंबे टाइम से फील कर रहे थे, उसके बाद आपको ये सक्सेस मिलने वाली है. उसके बाद आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा. ये मटेरियलिस्टिक सक्सेस के बाद आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने वाला है. उसके बाद आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा. उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपने आप में कंफर्टेबल हो पाएंगे, अपनी आइडेंटिटी में कंफर्टेबल हो पाएंगे. आई डू सी कि सम ऑफ यू स्पेशली इन द पास्ट dealt with lots of emotional up and down, lot of emotional up and down. इमोशनली शायद आप, मुझे तो कुछ लोग रोते हुए भी दिख रहे हैं, मुझे कुछ लोग को समझ, आप लोग मतलब यू वांटेड टू ट्राई टू डू समथिंग, यू वांटेड टू मेक इट वर्क, देयर इज अ रिलेशनशिप विद दिस एनीथिंग, एंड इट वाज नॉट वर्किंग आउट, एंड यू वर जस्ट लाइक कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, व्हाई इट्स नॉट. एंड इट्स जस्ट दैट काफ़ी ज़्यादा अनइंस्पायर्ड फील कर रहे थे आप. यू न्यू दैट यू हैड टू डू समथिंग, बट यू वर जस्ट नॉट इंस्पायर्ड टू डू इट. लाइक आपको पता है कि आपका कल एग्जाम है, बट आप अपने, यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ टू स्टडी, बट आपसे हो नहीं पा रहा था. एंड लाइक कि मेरे अंदर का जिस्ट कहाँ है. तो आपको जिस्ट आपके मटेरियलिस्टिक सक्सेस के बाद मिलेगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ मटेरियल सक्सेस वेरी वेरी सून. बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू कंटिन्यू इट. आपको कंटिन्यू करते रहना जब तक आपको ये 10 ऑफ कप्स नहीं मिल जाता. आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते रहना है जब तक आपको कोई टेम्परेंस नहीं मिल जाता, आपको कोई गाइड नहीं मिल जाता, आपको कोई मेंटोर नहीं मिल जाता जो आपको गाइड कर सके. एंड इट विल हैपन वेरी वेरी सून, बट द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू कंटिन्यू. बाय द वे, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव सीन सच अ पॉजिटिव कार्ड्स, और कहीं ना कहीं ये कार्ड मटीरियलिस्टिक सक्सेस से रिलेटेड है. काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आए हैं, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप लोग हार माने. सो प्लीज़ कंटिन्यू विथ योर प्रोसेस, प्लीज़ कंटिन्यू विथ वट एवर यूर डूइंग, बिकॉज यू गोइंग टू गेट थिंग्स, एंड यू गोइंग टू गेट थिंग्स इन अ लार्ज अमाउंट, बिकॉज आप समझने वाले नहीं हैं. यू हैव नो आइडिया हाउ मच मनी यू गोइंग टू मेक. लाइक यू हैव नो आइडिया. You have no idea how much money you're going to make. You seriously don't have any idea. And शायद आप ये सक्सेस, ये फेम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. इस लेवल एंड इस अमाउंट की सक्सेस आपको मिलने वाली है. आई डू बिलीव इट कि कहीं ना कहीं मुझे इमोशनल अनफुलफिलमेंट मिल रहा है आपकी लाइफ में. हो सकता है आप में से कुछ लोग एक पर्टिकुलर गोल पे फोकस हैं, वो मिल नहीं रहा था, उसकी वजह से इमोशनल अनफुलफिलमेंट है, या आप अपने कप्स को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो फिल नहीं हो रहा. तो माय डियर, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. फर्स्टली यू हैव टू फोकस ऑन योर मटेरियलिस्टिक सक्सेस. आपको एम्परर बनना होगा, आपको अपने आप में इनफ बनना होगा, आपको अपने राज्य का राजा बनना होगा. उसके बाद कहीं जाकर आपको ये 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स मिलेगा, राइट? So I hope you got this reading very clearly. Actually, this was such a sudden reading. I was not meant to do this reading. I wanted to do a person on your mind, but somehow this reading found its way itself. और आज का दिन काफ़ी अच्छा है. So I do got sun very particularly in this reading. तो अगर कोई connection है आपका sun से, you know, if you have a very strong sun in your charts or anything,
और मे बी जस्ट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, मे बी यू शुड स्टार्ट वर्शिपिंग सन, यू नो, जल चढ़ाना शुरू कर दें इन द मॉर्निंग, और ट्राई टू जस्ट डू सन बाथिंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ये आपके इनर कॉन्फिडेंस को और इनर फायर को बढ़ाने में मदद करेगा। लेट्स सी अ फाइनल एडवाइस फॉर यू। Wow, wow, we got three of pentacles. Like focus on this card. Like जो main pentacle है कहीं ना कहीं वो sun के rays की तरह है, right? Can you see it? Yeah, it's like sun rays, right? बीच में एक sun है and then वो rays. Yeah, yeah. Whatever you're planning on, you need to keep going. You really need to keep going. बार बार यही आ रहा है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप प्लान कर रहे हो वो राइट है, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो. So please continue with this. You're going to get success. You just have no idea. You have no idea how much you're going to win, how much you're going to get. I do know that sometimes it's very hard to believe in these things. Some confirmations that how this reading is for you. Past में, I mean recently past में कोई ना कोई चीज़ आपकी कोई गुमी है. Some kind of fraud happened to you. It could be anything related with a cloth or anything very particular as well. But fraud हुआ है किसी type का. You have lost something. There is someone around you. You know that they are hiding something from you. So it could be anything. Also the emotional unfulfillment part, like आपकी लाइफ में एक तरह से आप बहुत कुछ ट्राई करो फिर भी इमोशनली आप फुलफिल्ड नहीं हो. That could also be the biggest statement that this reading is for you. Let me see a final advice for you. Wow, I got the Justice card. Wow, I got this is the, and I got the King of Pentacle again. Interesting. Okay, I got Justice card. So it's very clear that yes, you're going to get the success. And Eight of Cups. Wow, interesting. See, I don't believe in coincidences. Like universe आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्दी आपके साथ जस्टिस होगा. कर्मा आपके फेवर में आने वाला है, एंड कहीं ना कहीं कर्मा आपके फेवर में आ चुका है. एट ऑफ कप्स, जहाँ तक आई कैन सी इट कि स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट कुछ टाइम से काफ़ी बढ़ गया है. पहले से भी था लेकिन इस टाइम पे कुछ ज़्यादा बढ़ गया है. आप अपनी लाइफ में अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो. लाइक यूर लाइक दिस इज़ नॉट एनफ. आई डू सी इट कि आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि अब वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, शायद वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यू नो, वट एवर यू वॉन्टेड इन द पास्ट, इन अ ईयर अगो, 2 year ago, अब वो आपकी लाइफ में आ रहा है. बट फॉर यू इट्स नॉट इनफ एनी मोर. यूर लाइक कि मे बी आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम दिस थिंग. शायद मेरे पुराने वर्जन को ये पसंद था, बट a version like myself 2.1 is not happy with it, is उसके लिए enough नहीं है. So आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो. You're realizing your worth, you're realizing कि हाँ ये मेरे लिए enough नहीं है, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाहती हूँ. दैट इज़ वट आई सी फॉर यू, एंड दिस इज़ सच अ वेरी नाइस एनर्जी, बिकॉज यू नो जो आपके लिए इनफ नहीं है, जो लेसन्स आपको शायद यूनिवर्स सिखाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में डिले लेकर आ रहे थे, आपको फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि ओके क्यों मेरी लाइफ में डिले आ रहा था एंड क्यों मुझे चीज़ें मिल नहीं रही थी. सो ओवरऑल अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग, एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि इतनी पॉजिटिव रीडिंग मुझे दिखी है. इफ़ यू, आई डू बिलीव इट, क्योंकि बार बार द सन वॉज द फोकस ऑन दिस कार्ड. अगर आपको कुछ नहीं करना, लाइक यू डोंट वांट टू डू एनी रेमेडी, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, जस्ट ट्राई वन थिंग, ट्राई टू डू सन साधना. लाइक ट्राई टू डू सूर्य साधना इन एनी वे, इन एनी फॉर्म. अगर आप सिर्फ मेडिटेशन करते हैं तो ट्राई टू डू द मेडिटेशन एज वेल. इट्स गोइंग टू गिव यू सो मच रिवॉर्ड दैट आपको समझ नहीं आएगा. Like you have no idea how much and how will you win, like really no idea at all, but just keep going, क्योंकि आपका प्लान सक्सेसफुल होने वाला है. जो आप प्लान कर रहे हो, जो आप प्लानिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो कहने ओके कार्ड्स कर रहे हैं. आई गेस अभी हमारी रीडिंग पूरी नहीं हुई है, थोड़ा हमारी रीडिंग पूरी हो गई. ओके, आई गॉट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एज वेल, एंड देन देयर वाज लाइक अदर कार्ड. ओके, वी गॉट 6 of Pentacles as well. क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड 6 of Wands. काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो आप अपने मनी को लेकर. अगर आप में से किसी लोगों ने कुछ मनी सामने वाले को दिया है, यू नो, फॉर अ डेप्थ और एनीथिंग, वो आपको जल्दी मिलने वाला है. आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन करने के लिए पहले अगर आप हिचकिचाते थे, यू नो, लाइक कन्फ्रंटेशन करने से पहले आप 100 बार सोचते थे कि क्या मुझे सामने वाले से बोलना चाहिए. अब ऐसा नहीं है. यू गोइंग टू आस्क देम व्हाट यू डिज़र्व, यू गोइंग टू आस्क देम फॉर योर ओन रिवॉर्ड्स दैट यू डिज़र्व. तो काफ़ी ज़्यादा अपफ्रंट एनर्जी आ रही है आपकी, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट आ रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक दिख रहे हैं मुझे.
बात करने का तरीका आपका काफ़ी चेंज हो गया है। आई डू सी, क्योंकि सिक्स्थ हाउस कहीं न कहीं एनिमीज़ को दिखाता है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू को दिखा रहा है, तो जल्दी आपका कोई हेल्थ इश्यू भी रिज़ॉल्व होने वाला है। अगेन आई सेड अपफ्रंट होने वाले हैं आप, और आई डू बिलीव इट कि पर्टिकुलरली देयर इज़ सम कन्फ्रंटेशन दैट शुड हैव बीन हैपेंड इन द पास्ट, तो आने वाले टाइम में होने वाला है, आने वाले 6 दिन 6 वीक के अंदर-अंदर वो कन्फ्रंटेशन होने वाला है, और कहीं न कहीं आप उस कन्फ्रंटेशन को करोगे, बिकॉज़ यू आर लाइक I've had it enough, अब मुझसे नहीं होगा, I can't continue this process. um, Knight of Wand as well, again we got Knight of Wand. Again, if you look at the card, it's very like sun-like, you know, it's very sun-like राजकुमार कहते हैं हम नाइट्स को. सो आप काफ़ी ज़्यादा अपने टीनेज एनर्जी में आने वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा जिस्ट ऑफ लाइफ जो कहीं ना कहीं खो गया था पास्ट में, वो आपको मिलने वाला है. एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग, यू नो, बिकॉज इट्स लाइक काफ़ी क्लियर कट रीडिंग है ये, कि पास्ट में जो हुआ, पास्ट में जो प्रॉब्लम्स आप कैरी आउट कर रहे थे, पास्ट में जो चीज़ें आप लंबे टाइम से झेल रहे थे, अब उनमें पॉज करने का टाइम आ गया है. बट आप लास्ट फेजेस में चल रहे हो, अभी आपको रुकना नहीं है. एंड डिले कुड बी रिलेटेड विथ लव लाइफ एज वेल, डिले कुड बी रिलेटेड विथ इमोशनल फुलफिलमेंट एज वेल. एंड मे बी योर लाइक कि हमारी लाइफ में तो इमोशनली सब कुछ है, फिर भी हम खुश नहीं है, अंदर से आप खुश नहीं हो. एंड मे बी यू शुड स्टॉप लाइंग टू योर सेल्फ. सो दिस इज वट आई सॉ फॉर यू. Yeah, I think this is enough. Okay. What is this card? I can't read it. Okay, we got 10 of swords ending, finally ending. Swords. 10 of swords shows final ending. तो एंडिंग हो रहा है. जैसे मैंने बोला था एट द स्टार्ट कि कोई कन्फ्रंटेशन आप करने वाले हो, एंड वो कन्फ्रंटेशन कहीं कहीं आप वो चीज़ को एंड करोगे.